बदली पर फीकी के कार्यक्रम में अरुण जेटली ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी से विकास हो रहा है। भारत अब बड़े फैसले ले रहा है, बड़े फैसले भारत में लिए जा रहे हैं। ऐसे फैसले पहले नहीं हो पा रहे थे। सीधे तौर पर उन्होंने फीकी के कार्यक्रम में कहा कि जो फैसला है नोटबंदी का पूरी तरह से ऐतिहासिक है और आने वाले समय में इसका बड़ा फायदा भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका बड़ा फायदा होगा। रुपयों का संकट जल्द पूरा हो जाएगा। उन्होंने पूरी तरह से भरोसा भी दिया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जीएसटी बिल पास होना हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। In terms of rationalizing subsidies and therefore giving it the statutory support under the Aadhaar legislation which was passed earlier this year, we now find that in various areas we are being able to check leakages, we are being able to target subsidies in the direction in which they were meant. And this has indeed helped us to change even the course of discussion. If you recollect the 2014 elections, what was the content of the discussion? Whether it should be 9 subsidized cylinders for everyone, including the wealthy, or it should be 12. That was the thought process. And suddenly you have only the more deserving who are entitled to it. The very poor are entitled to more subsidized, if not free, in the first instance. And those who can afford it will give it up. Pass the Constitution Amendment. There are several decisions which the GST Council now has to take, and these are of very vital interest to India's industry. There are about 10 important decisions which have already been taken, all unanimously by consensus. The legislations which have to be passed by Parliament under the Constitution Amendment and the state legislatures are currently in the process of being drafted. I don't see any major difficulty in those legislations being finally approved. There is only one issue which in the larger frame of things is really a very small issue. Because when 3 major taxes and some minor taxes are all merged into one, the VAT, the excise, the service tax, and a host of state taxes, then each assessee is going to be assessed only once. So you have already a pre-existing machinery at the center, you have a pre-existing machinery in the states. How is the burden of this assessment going to be shared between the center and the states? How do we cross-empower both the agencies of the center and the state when both these parallel setups exist? Though ideally with a common taxation, it has to lead to a federal bureaucracy. But till such time it takes place, because it's still a far cry, how does this sharing take place? There are certain kind of turf issues involved in that. We are trying to resolve it. तो जेटली ने कहा कि नोटबंदी का जो फैसला लिया गया बहुत ही ऐतिहासिक फैसला था, साहसिक कदम था। इसका फायदा आने वाले समय में होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत ही तेजी से विकास कर रहा है। जीएसटी पास कराना बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन बाजार का क्या हाल है, इसके लिए इस वक्त हमारे साथ है मार्केट एक्सपर्ट रूपानी जी। इस वक्त हैं रूपानी जी। बड़े बड़े दावे लगातार सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। अभी भी कहा जा रहा है कि नोट बदली के बाद जो नोट की दिक्कत हो रही है, कैश की दिक्कत हो रही है, उससे जल्दी दूर कर लिया जाएगा। अर्थव्यवस्था काफी तेजी से विकसित हो रहा है। लेकिन मार्केट का हाल क्या है? जो दावे किए जा रहे हैं, क्या उससे कुछ मैच दावे के हिसाब से मार्केट कर रहा है?
देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो दावे किए जा रहे हैं वो फ्यूचरिस्टिक है, और जो एग्जिस्टिंग स्टेट जो हम देख रहे हैं अपने आजू बाजू में, वो डेफिनेटली रिकवरी की तरफ है। जो पहले एक पैनिक सिचुएशन था, जो बिल्कुल नोट्स अवेलेबल नहीं थी, काफी बड़ी क्यूज थी, और सर्कुलेशन में जो इशू था, उससे बिजनेसेस 30-35% डेफिनेटली इम्पैक्ट हुए थे। लेकिन लास्ट अपडेट जब हमने इंडस्ट्री से लिया है, तो वहां से रिकवरी आना शुरू हुई है। अगर फाइनेंस कंपनी से जो हमने बात की, जो सीमेंट कंपनी से हमने बात की, स्लो रिकवरी धीरे धीरे मार्केट में आ रही है। जो मैं बिजनेस प्लेस की बात कर रहा हूँ, स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा। तो मार्केट प्लेस में जो रिकवरी है वो स्लो है। आई एम श्योर कि जैसी ही बजट आएगा और जीएसटी इंप्लीमेंटेशन का पूरा रोड मैप हमको दिखेगा, जो जेटली जी अभी कहने की कोशिश कर रहे हैं वो डेफिनेटली रियलाइज होते हुए आपको दिखेगा। लेकिन इमीडिएट में आपको आज या कल में नहीं देखने मिलने वाला, आने वाले क्वार्टर में जरूर देखने मिलेगा। जी रूपानी जी, लेकिन एक बात जो जेटली जी की तरफ से कही जा रही है कि अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही तेजी से विकसित कर रहा है, लेकिन जब नोटबंदी का फैसला, इसके बाद जीएसटी को उन्होंने बताया कि बहुत ही बड़ी कामयाबी है, इसके बाद क्या लग रहा है कि जो बात कही जा रही है जेटली जी की तरफ से, उस बात में आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है? क्या कुछ आपको लगता है कि एक बड़ा आउटकम आएगा निकल करके? देखिए, मैं आपको एक बहुत सिंपल फैक्ट बताता हूँ। 15 दिसंबर जो था वो एडवांस टैक्स भरने की सीमा थी। अगर जितने भी कंपनीज हम लोग ट्रैक करते हैं, देखिए कंपनी से ही आपको देश की हालत पता लगती है। जी बिल्कुल। कंपनीज थी उसमें 10 में से 9 कंपनी ने ज्यादा एडवांस टैक्स भरा है। इसका मतलब ये तो सही है कि जो इम्पैक्ट हम सोच रहे थे जितना आने वाला, उतना इम्पैक्ट नहीं आया है। ठीक है, और रिकवरी की तरफ है। डेफिनेटली हम लोग जो रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे वो और बेहतर एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो नहीं आ पाए, वहां इम्पैक्ट आया है। तो जेटली जी जो अब पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो आने वाले समय के लिए अच्छा एक रूपरेखा दिखा रहे हैं, उनका जो आधार है वो ये 15 दिसंबर के जो एडवांस टैक्स के नंबर आए हैं, उस बेसिस पे वो ये पॉजिटिविटी दर्शा रहे हैं।